Dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, today we are going to meditate Hebrews 10:35. आज के दिन इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 35 वचन पर हम मनन करेंगे। Cast not away therefore your confidence. अपना हियाव ना छोड़ो। The book of Hebrews was written to the newly born again believers who put their trust in Lord Jesus Christ from Jewish background. और इब्रानियों की किताब में जो यहूदी के रहने वाले और अपने स्थान को छोड़कर मसीह यीशु पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनको लेकर ये बातें उनसे बोल रहे। Because they accepted Jesus Christ as their personal savior, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण से the Orthodox Jews subjected these newly born again believers to many hardships. और ये जो कट्टर यहूदी लोग थे ना, और यहाँ से यहूदियों में से जो लोग मन फिराव किए हैं उन पर बहुत सतावट लाते थे Yeah, their properties were ransacked. और उनकी संपत्ति को वो छीन लेते थे। The Orthodox Jews were not giving their children in marriage to the children of the born again Jews. और ये जो कट्टर यहूदी लोग अपने बच्चों को, अपने संतान को और विवाह में उनके साथ नहीं देते। So they underwent many severe difficulties. और इस प्रकार से कई प्रकार के सतावट से वो जा रहे थे। The Hebrew writer writes about these things. और इब्रानियों को लिखने वाला ये बातें लिखता है। If you read chapter 10, और 10 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे 32, 33, 34 verses. 32, 33 और 34 वचन में लिखा है। But call to remembrance the former days in which after you were illuminated, you endured a great fight of afflictions, partly whilst you were made a gauging stock both by reproaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used. For ye had compassion on me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। As a matter of fact, these newly born again Jewish believers, they are slowly maturing in their faith. वास्तव में अभी अभी जो यहूदी से नया जन्म पाए लोग, वो आत्मिक जीवन में वो बढ़ रहे थे। But these difficulties and untold persecution weakened the faith of some of the new converts. लेकिन इस प्रकार का इस सतावट है ना, अभी अभी जिसका नया जन्म हुआ है ना, और उनको कमजोर बनाते थे। Since the believers are from the Jewish background, और ये जो विश्वासी लोग हैं यहूदी के रहने वाले थे, we all know they know the law of Moses very well. और वो लोग मूसा की व्यवस्था को अच्छी तरह से So जानते। that's why the writer of Hebrews generally believed Apostle Paul. He mentioned many Old Testament subjects. इसलिए इब्रानियों को लिखने वाला लोग बोलते हैं कि ये तो पौलुस है, क्योंकि पुराने नियम के कई बातों को यहाँ पर वो लिखता है। That's why in the book of Hebrews we can come across the tabernacle, इसलिए हम इब्रानियों की किताब में तंबू के बारे में हम पढ़ते हैं, priesthood and sacrifices, और याजक के बारे में जो बलिदान देने के बारे में, and we read about Melchizedek, etc. और मिल्कीसेदेक, इस प्रकार के और कई बातों को हम पढ़ते हैं। Even in chapter 11, the heroes of faith, और फिर जो 11 वचन में जो विश्वास के वीर लोग, 11 अध्याय में विश्वास के वीरों के बारे में and पढ़ते he हैं। quoted many examples in relation to the subject of faith from the Old Testament. और जो विश्वास के बारे में जो पुराने नियम से लिया गया है, और कई सारे उदाहरण को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। So for a New Testament believer, तो जो नए नियम के विश्वासी के लिए the letter to Hebrews contains a wealth of spiritual truths to help them in their spiritual growth. इब्रानियों को जो पत्री लिखा है उसमें, और विश्वासी जीवन में वो और भी आगे बढ़ने में आत्मिक संपत्ति के बारे में लिखा। Since many Old Testament passages are quoted and explained, और कई सारे पुराने नियम के व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा है, the New Testament believers' eyes of understanding can be opened to the Old Testament truths. नए नियम के विश्वासियों को जो पुराने नियम के सच्चाई है उसकी जानकारी के लिए उनकी आंखें खुल जाती है। Much of the content of this book gives some parallel between pre-cross and post-cross situation. और अधिकतर विषय यहाँ पर
क्रूस के पहले वाली बातें और फिर क्रूस के बाद में वाली बातों की बराबरी के बारे में बात करती है। Pre-cross means dispensation of the law. और जो क्रूस के पहले जो समय था वो तो व्यवस्था का समय, And post-cross means it is the dispensation of the grace of God. क्रूस के बाद वाला जीवन जो है ये तो उसका दया उसकी करुणा का समय है ये। So many lessons can be learned from the failures of the Old Testament Israelites. और इस प्रकार से हम पुराने नियम के जो इस्राएली लोग विफल हो गए थे उनके जीवन से कई सारे सबक को सीखने के लिए मिलता है। So if you meditate this book seriously, यदि हम इस किताब पर हम अध्ययन करेंगे, we can avoid their mistakes. वो जो गलतियां उन्होंने की है हम उसको छोड़ सकते हैं And we can learn from their successes. और उनके जीवन में जो सफलता हुई है उससे हम कुछ सबक सीख सकते And we can gain strength to endure trials. हैं और फिर हम मुसीबतों को सहने के लिए हम बल प्राप्त कर सकते And we can press on for the high toward the goal of our calling. हैं और जो भी हमारा ऊंचा बुलावा है और उसकी ओर हम जा सकते And we can press on to perfection. हैं और हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते So the born again believers who have been saved by grace through faith in Christ, हैं। जो मसीह पर विश्वास करने से और मसीह की दया के द्वारा जिनका नया जन्म हुआ है, and they can protect themselves from drifting away from the New Testament principles of the church. और फिर जो मंडली के लिए नए नियम में जो कुछ नियम दिया है और उसका वो पालन कर सकते हैं। And that's why इसीलिए in the verse for our meditation today the author says, और आज के दिन के हमारे इस वचन के लिए वचन में लिखता है, cast not away therefore your confidence. और यहाँ पर यह इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो। If we continue in the New Testament faith, यदि हम नए नियम के विश्वास में आगे बढ़ते we will रहेंगे receive great recompense of reward. और हम कई सारे फिर उसके द्वारा जो हमको मिलता है जो बहुमान को हम पा सकते हैं। And we are to be faithful in every circumstance of life. हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हम वफादार होना चाहिए। God must be honored through our testimony. परमेश्वर हमारी अगुवाई के द्वारा और उसका आदर होता है। We are to walk in spirit and truth. हम आत्मा और सच्चाई में चलना है। And as we die to our own desire and seek to do perfect will of God for our lives, जैसे हम हमारी इच्छाओं के लिए हम मर जाते हैं और परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा करने के लिए हम निर्णय ले लेते हैं। all warning passages caution us against spiritual negligence. We should not be negligent spiritually. हम आत्मिक विषयों में हम लापरवाही नहीं करना है, ये चेतावनी देती है हम। So many words of spiritual encouragement are there in this letter. और इस पत्री में आत्मिक जीवन के बारे में बहुत प्रोत्साहन देने वाली बातें हैं। So in this verse we are encouraged not to throw away our confidence in Christ. और ये वचन में लिखा हुआ हम मसीह में अपना हियाव ना छोड़ना। So if we do like that, we will be having a great and lasting reward. यदि हम ऐसा करेंगे तो हमेशा रहने वाला इनाम को हम प्राप्त कर सकते How tempting it can be to start to rely on our own abilities and resources. हैं। ये हम अपने खुद पर निर्भर होना ये कितना प्रलोभित करने वाली बात है। So in preferring to trust the Lord and depending upon His provision, we should not lean our human understanding. परमेश्वर पर हम निर्भर होने के लिए, उस पर भरोसा रखने के लिए हम अपने खुद पर हम अपने निर्भर नहीं होना चाहिए। As human beings, we crave for seen help. Some help is seen means we will be going that. मनुष्य होते नहीं, हमने जो हमको दिखाई देती है वो मदद सहायता उसको चाहते हैं। So depending on the seen helps is highly tempting. जो हमको दिखता है इस सहायता ये है हमको बहुत प्रलोभित करने वाली So but we are not to become weary in well doing. बात। इसीलिए ना हम भलाई करने में हम इनकार नहीं करना है। And we should not abandon the work that God has assigned us to do. अब जो परमेश्वर ने हमको करने के लिए काम को सौंपा है और हम उसको छोड़ना नहीं है We have to keep going on and on. और हम आगे बढ़ते ही रहना है And we have to occupy till He comes again. और फिर जो वापस आने तक हम इस काम में लगाए If रहना we continue like that, है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते in रहेंगे। due season we shall reap a substantial reward. जब वो समय आता है तो हमको जो इनाम वो देगा। And we have to patiently endure and we should not be fainted. हम सहनशीलता रखते हुए हम उसको सहना चाहिए, हम कमजोर नहीं होना है। I can say in my own life, मैं अपने जीवन से मैं बता सकता हूँ, sometimes the temptations are so intense. कभी कभी ये जो परीक्षा आती है
और ज्यादा अधिक होती है। Often I used to pray, और कई बार मैं प्रार्थना करता Oh हूँ, Lord, teach me not to lose my patience. आप प्रभु मैं हियाव ना छोड़ने के लिए सहायता की। Often there were temptations to turn to the human help in such situations. कई बार ऐसे परिस्थितियों में हम मानव सहायता के लिए हम उस तरफ जाते हैं। Physical health also was deteriorating many times. अब शारीरिक से स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाती है। Spending time in prayer with tears became our daily routine during the satanic attacks. और जब शैतान हम पर वो हमला करता है तो हम प्रार्थना में हम रोते रहते हैं। As a believer, I too suffered such things. पर एक विश्वासी के समान मैं भी इस प्रकार के सतावट से गया हूँ। In such situations, ऐसे परिस्थितियों में the family members and the fellow believers who were close to us and their prayers are of great help. परिवार के लोग और फिर हमारे साथ वाले भाई इनकी प्रार्थना हमको बड़ी मदद करती है। So, my dear brothers and तो sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, let us hold fast to that which is good जो भलाई का काम है हम उसको लगाए, उस काम में लगे रहें and seek to do everything for the glory of God. और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए ही हम करेंगे। Then our spirit, soul and body may be preserved complete and blameless at the coming of Lord Jesus Christ. जब हमारा आत्मा प्राण शरीर सब परमेश्वर के आने के दिन तक वो निर्दोष रहेगा। And all these deeds are for His glory and for His praise. अब ये सारे काम उसके महिमा के लिए और उसकी भलाई के लिए होगा। Nowadays I am seeing and hearing that similar troubles आज के दिनों में इसी प्रकार के सतावट के बारे में मैं सुन may रहा not be of that much intensity, हूं। और उतना ज्यादा गहराई से नहीं होगा। but these difficulties are faced by the believers who accepted Jesus Christ as their personal savior from Gentile backgrounds. लेकिन ये जो मुसीबतें विश्वासी पर आती है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, ये तो अन्य जाति से उन पे आती है। Some of their children, और उनके कुछ बच्चे, suppose if they are from Gentile background, यदि वो अन्य जाति से आए हैं, when they accept Lord Jesus Christ as savior, जब वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण so किया some of the parents, they are not giving the legal share in their properties to these born again believers. तो ऐसे समय में जो माता पिता है ना, जो नया जन्म हुआ ये जो विश्वासी है और अपने संपत्ति में से उसको कोई जायदाद को वो नहीं देते। Some are physically beaten by their relatives. और कुछ लोग तो उनके रिश्तेदार के लोग शारीरिक तौर से उनकी मार पिटाई भी Some करते are forcibly married to unbelievers against their own wish due to the pressure of unbelieving parents. हैं। और कुछ लोग के जीवन में ना जबरदस्ती से अविश्वासियों के साथ उनका विवाह करते हैं। Troubles and sufferings are many. तो इस प्रकार के सतावट मुसीबत बहुत ज्यादा है। Even the Jews who accepted Lord Jesus Christ as their savior, they suffered a lot. और भी यहूदियों में से जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके जीवन में भी इसी प्रकार की सतावट आई है। Keeping them in our mind, let us get strength and go forward. और ऐसे बातों को हम मन में रखते हुए हम बल प्राप्त करते हुए और हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। Then you will be awarded the crown of life. जब आपको जीवन का मुकुट मिलेगा And many more crowns or rewards in future. और भी आने वाले दिनों में कई प्रकार के मुकुट और इनाम को आप प्राप्त करेंगे। Because James says in James 1:12, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसके 12 वचन में, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। James calls such people as blessed people. याकूब ऐसे लोगों को कहता है कि वो धन्य है। Hold fast your faith. तो अपने विश्वास में आप स्थिर रहना है। Our day of redemption is very near. तो हमारा छुटकारा पाने का दिन वो और करीब में है। Don't get discouraged by these afflictions. तो इस प्रकार के सतावट को देखकर निराश ना होना। May God help you. परमेश्वर आपकी May सहायता He be with you in all your afflictions. और आपके सारे कठिन समय में, मुसीबत के समय में परमेश्वर आपके साथ रहे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, because of their faith, the new Hebrew believers suffered a lot. विश्वास के कारण से नए इब्रानी लोग बहुत सारा सतावट का वो सामना Their कर properties are और ransacked. उनके संपत्तियों को छीन लिए। They became gauging stock. That is, people were laughing at them. तो लोग उनको देखकर हंसी मजाक करते थे Oh, their properties are looted. और उनके संपत्ति को भी उन्होंने छीन लिया। But, oh Lord, they suffered and suffered. लेकिन प्रभु बहुत मुसीबत और सतावट से जाते हैं। But the Hebrew writer is encouraging them by quoting some of the Old Testament examples, the heroes of faith. लेकिन इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला पुराने नियम के जो विश्वास के वीर लोग हैं और उनके उदाहरण को लेकर प्रोत्साहन देते Even हैं। some of our dear ones who are hearing this message. और ये जो वचन को सुन रहे हैं हमारे प्रिय लोग
Because of their faith, they may be suffering. हो सकता है उनके विश्वास के कारण से उनके जीवन में सतावट से They गुजर lost their portion of properties from their ancestors. और उनके माता पिता से जो उनको संपत्ति मिलना चाहिए था वो तो खो गए। Some people are married to unbelievers without their willingness. कुछ लोगों को जबरदस्ती से प्रभु अविश्वासियों के साथ उनका विवाह कर दिया है Some people are beaten also. और कुछ लोगों की मार पिटाई भी हुई Lord, है। we are praying for them. प्रभु ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते Oh हैं। Lord, when we accept Thee as our Savior, all these things we can expect. तो जब हम आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो इस प्रकार के सतावट तो आते ही है, But our reward in heaven is great. लेकिन स्वर्ग में जो हमारा इनाम है वो महान इनाम है Crown of life is waiting for और us. जीवन का मुकुट हमारे लिए इंतजार में है। Help us to understand these things and bear these things for Thy glory. और इस बातों को समझने में और तेरी महिमा के लिए प्रभु सहने के लिए सहायता कर। Guide the steps of our dear ones. तो हमारे प्रिय भाई लोगों को अगुवाई कीजिए We do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. और हमारा प्रभु उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।